riding high when I was king. I played it hard and अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी कनेक्टेड ऑन अ व्लॉग, बट आज चूंकि इट्स अ स्पेशल डे सो वी आर सपोज्ड टू मेक अ व्लॉग एंड ऑफ कोर्स मेक सम डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट. We are invited to RFC, Rawalpindi Flying Club, because we have to be there for International Women's Day. We are celebrating the women's in aviation, and then of course we have some incoming guests from PIA. ठीक है, उनके पायलट्स आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ स्पेशल शख्सियात भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी थोड़ा कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा. एक आधा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला जाकर और आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे इस हवाले से. तो कीप अस कनेक्टेड विद यू एंड वी विल गेट यू गाइस. फाइनली पहुंच चुके हैं RFC, वो सामने देखिएगा. और बस ये कि आज थोड़ा सा हला उला करते हैं RFC में, कुछ यादें ताज़ा करते हैं और उसके बाद जो है आगे मूव ऑन करते हैं चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह. ये देखिए जी, हैप्पी वुमेंस डे के हवाले से काफ़ी प्यारी डेकोरेशन की हुई है RFC में और प्रॉपर जो है हाँ अच्छा ये देखिए जी, सिमुलेटर सेटअप है प्रॉपर. Achieve the same they have now. The special day 8 March, as we all are here together for this day, specifically remind us about the women empowerment, and we have to just show that and promote their equality in the this all society. We have this in very clearly in our mind that this is what we have to promote this day, especially in RFC, just because of we have a lot of female students here and we do not have the gender discrimination. So I welcome you all. Thank you very much for coming, and especially our guests. They have came all in this Ramadan. They have specially spared their time in their busy schedule. So I welcome you all. Thank you very much for coming and being with us. Thank you. Firstly, I would like to start by thanking the club for gathering all of us here today. So we're going to be celebrating a very special day. It's a day to recognize the achievements, contributions and progress of women, and to celebrate our resilience, strength. And as we celebrate Women's Day, I'm reminded of all the incredible women who have paved the way in aviation, like Shukriya Khanum, ma'am. Autonomous vehicle, we started introducing the commercialization and introducing how drones can help most underprivileged tier of the society, that is farmers. So we decided to introduce these UAVs to farmers, and then after that we see the use cases where the accessibility is a challenge and you need a lot of efficiency in operations, and you want to add something which can help humans to detect and make decisions. So that's where we introduced UAVs. So what we can say is that after either it's a manned aircraft or an unmanned aircraft, you need to develop a commercialization model, and then you can generate value. First of all, you need to have a perspective about how you can help others with your technology solution. So we introduced this concept, and Allah has been really kind on us. Alhamdulillah, we were able to generate a lot of revenue and did a lot of 40 plus job creations right now. We're based in NASTAP. We are open for everyone to visit us and get inspired from drones and how the future of autonomous vehicles would look like. So you guys can have have a look how these composite parts are being made, how the control systems of UAVs can work, and how we can modify all these things and commercialize along with them. एक इंटरपोलर तो मौजूद हैं जो कि एयरलाइन इक्विपमेंट जो बनाती है, तो बहुत ही बड़ी बात है. सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ. मेरा नाम जमशेद इशरत है. फ्लाइट है बेसिकली तो मैकेनिकल इंजीनियर in Lahore, and then I joined PIA in 1968
You can guess it. I'm an old man right now. PIA में मैंने ज्वाइन किया एज ए फ्लाइट इंजीनियर 747. उस जमाने में 707 थे. लेटर ऑन सैगल साहब थे हमारे एमडी, उन्होंने खरीदे थे DC-10. उस पर मैं फ्लाइट इंजीनियर बना एंड देन आई स्विच टू 747. As far as PIA is concerned, maybe you're all be inducted in PIA. It's very simple. जैसे ही पायलट की वैकेंसी निकलती है अप्लाई. आजकल हालात थोड़े से लो हैं उसके PIA के, बट डजंट मैटर. ये कहीं नहीं जाती, ये लाइन रहेगी. और इसके पास रूल्स बहुत अच्छे हैं. क्यों ये इस तरह? रीजन फॉर द ड्रॉबैक ऑफ PIA इज पिल्फरेज. इतना पिल्फरेज है कि रूल्स भी हैं, टिकट्स भी बिकते हैं, पैसेंजर भी ट्रैवल करते हैं, कार्गो भी होता है, तो फिर सर्वाइव क्यों नहीं करना? लोन क्यों देना पड़ता है? एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडक्ट्स a few million rupees in PIA just to survive. बराबर में एयर इंडिया का भी यही हाल था. एयर इंडिया को मैं इस तरह जानता हूँ. How the plane flies. There are so many colleagues of mine in America, so I started to go with them in their flight school in America, like 40 hours, and I'm still waiting for my time to get my papers done. Right now, Usman has told me to give you brief how the police do with your verification and why they're taking so much time. There is, as you know, the world is a global village now. People are like connected through Facebook, WhatsApp, Instagram, all over the world. For a security officer, he might be an ASI or some inspector. He doesn't know you. Firstly, the police officer doesn't know you by name. He will go to your house. He might do an undercover investigation, because this is a category 1 priority of us to clear the people for the airport. Airport is the most sensitive area that we consider, because 9/11 has happened and Rashid Minhas has an incident. So flying has all kind of pros and cons. First of all, this is home. It feels like I'm returning to home, and thank you so much, RSC, for giving me a chance to come back and have a very nostalgic yet very happy experience over here. I did my CPL from here back in 2015 and it ended in 2017. In my batch, I was the only female pilot, and one credit, I don't look at myself as a very extraordinary pilot. When I'm seeing Zoya sitting here, when Anusha is sitting here, I don't think I should call myself any extraordinary. But one thing I would like to give myself credit for was I was the only female pilot from Gilgit-Baltistan, and I still am, because the only thing that clicked, that actually bothered me, was I had nobody to look up to as inspiration. मतलब मुझे जब pilot बनना था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे पूछूं. I had nobody to ask. अच्छा, for a very long time मुझे पता नहीं था commercial pilot भी लड़कियां होती हैं. I always thought कि Air Force में ही जाती हैं लड़कियां, and I wanted to be in the Air Force. But thank God वो ख्वाब नहीं हुआ पूरा. And then I joined RSC, and RSC में आने के बाद actually ऐसा पता चला कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह लड़कियां पायलट बन सकती हैं और कैसे कैसे. और very rightfully said by Sanur, this aviation I think is a field जो कि ये नहीं देखता कि लड़की है या लड़का है. Thank you so much for inviting me here, and it's an honor for me. And thank you so much. And it's very special thanks to your Secretary Captain Zahid Rahman Abdullah. He's very senior and very professional pilot in PIA, and I'm his first officer. So he called me that I'm leaving for Toronto. You better go there and just meet all other pilots. So I'll not take much time of yours. A very small and short brief.
I joined Rawalpindi Flying Club in 2005, and I belong to a very small city, city Sialkot. So I used to come from Sialkot and live here in the hostel and visit my parents on weekends. I left RFC in 2008 probably, and I joined PIA in 2009. So I was lucky enough. So we were only two pilots in PIA at that time, and I was one of them. Very few ladies still as compared to men. Ratio is very less. And today when I see so many girls, pretty faces, it gives me immense pleasure and I feel very happy. But I don't take credit. I would like to say one thing, that if I'm standing here, it's not because How many papers are 7, 6, तो बॉयज हमारे साथ हमारे सीनियर पायलट हैं पीआईए की फर्स्ट ऑफिसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल टू दिस आरएफसी इवेंट. अच्छा, तो मैं सवाल तो सारे के सारे अपने जवाब दे दिए थे फॉर दोस वीडियोस, बट मुझे बताएं कि आपकी फ्लाइंग का कोई स्पेशल मोमेंट ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहती हो, और एक ऐसा मोमेंट हो जो टेरिबल हो जिसमें आप काफी कंफ्यूज हो या परेशान हो. ये एयरलाइन ऐसी एक प्रोफेशन है जिसमें कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है. जी. तो इस चीज़ को तो आप निकाल देंगे. कोई ऐसी फ्लाइट रही हो जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ. अब टेरिबल नहीं कह सकते. इट वाज एन इंसिडेंट वी वर फ्लाइंग फ्रॉम मदीना टू इस्लामाबाद. तो इंजन फेलियर था और हमारा कुछ ऐसा हमने अपना प्रोसीजर किया, हमने एसओपी की, चेकलिस्ट करी थी, हमने उसको फॉलो किया. With 400 passengers, तो हमें याद है पिछला रमजान था और उसके बाद तो उसमें मैंने जो एक चीज़ सीखी थी वो ये थी कि पेशेंस, कामनेस बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है. अपने ऊपर किसी चीज़ को मैंने तारी नहीं दी और ना ही मैंने सीखी था. We were very peacefully handling the situation. इसके अलावा छोटे-मोटे malfunctions से बाद में होते रहते हैं. उसको coordinate And what was the happiest moment that you ever felt? Like sometime होता है कि first flight हमारी बहुत happiest flight होती है. हाँ, बिल्कुल ऐसे फर्स्ट फ्लाइट ही आपका एक हैप्पीस्ट मोमेंट होता है, और जब आप इस एयरलाइन का हिस्सा बनते हैं. First flight. So, ma'am, how do you define the process for becoming a airline pilot for PIA specifically? Because for young women in this specific case, It's a very long process of induction, but it's not difficult. So you just step by step आप हर process करते हैं. और जैसे आप पहले एंट्री टेस्ट होता है, उसके बाद आपका ओरल इंटरव्यू होता है, फिर आपका उसके बाद मेडिकल होता है. तो इसी में फिर जो पीछे करते जाते हैं उसमें शॉर्ट लिस्ट होते जाते हैं. Actually, आपका रूट चेक होता है. ma'am, the medical is the same as we do for class 1, और इसमें काफी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मेडिकल होता है जिसमें साइकोमेट्री भी होता है. मेडिकल बड़ी अब तो साइकोमेट्री है हमारे हमेशा से अच्छा. बट लेकिन ये कि पीआई के मेरे ख्याल से काफी डीप होता है. हाँ, UPI. चलिए, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, तो हमारे साथ आज हमारे बड़े सीनियर एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं जो कि पीआईए के अंदर काफ़ी अर्सा सर्व करते हैं, और आप मेरे व्लॉग के अंदर पहले भी देख चुके हैं इनकी वीडियोस. तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस. तो हम सर से शॉर्टली जानना चाहेंगे वुमेन डे के हवाले से कि क्या इनकी राय है कि वुमेन्स को किसी भी कैरियर में या एविएशन के अंदर किस तरह से आना चाहिए, और क्या उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, किस तरह से उनका रोल मॉडलिंग होनी चाहिए, क्या रोड मैप उन्हें दिया जाए. सलमान, मैं अब इसके जवाब में ये कहूँगा कि मेरी 3 बेटियां हैं जी, और मैंने तीनों को कहा है कि चाहे प्रोफेशन में जाए जहाँ तुम्हें जगह. उनमें से 2 डॉक्टर, जी, एक डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट, और जो तीसरी है वो हाउस वाइफ है, लेकिन वो भी बड़ी माशाल्लाह पढ़ी. मैं तो इस चीज़ का आदि हूँ कि जहाँ भी मिले, चाहे शॉर्ट्स पहननी पड़े या स्विमिंग करनी पड़े, जाओ और कॉम्पिटिशन करो. और एविएशन एक फील्ड है, वन ऑफ द फील्ड जहाँ पर लड़कियाँ जा सकती हैं और बहुत कामयाब हैं दुनिया में. लेकिन अब मैं देखता हूँ बाहर के एयरपोर्ट्स पे
कि विमेन पायलट्स बहुत नजर आती है, आइदर को पायलट और कैप्टन, और वो माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दे रही है। और सर आपने अपना इतना अर्सा करियर सर्व किया, तो आप कैसा फील करते हैं कि आपने जो लाइफ पूरी गुजारी है, इसमें कोई ऐसा मोमेंट जब आप बहुत ज्यादा डर गए हो, बहुत ज्यादा एक टेरर किस्म का एक मोमेंट आपकी लाइफ में हो, और एक ऐसा मोमेंट जो बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है जिसको आज भी याद करके खुश होते हैं? सलमान, मुझे कोई ऐसा याद नहीं जिसमें वो, क्योंकि ये जितने एयरक्राफ्ट हैं ये अमेरिकन मेड हैं जो हमने फ्लाई किए, बोइंग या डगलस या DC, ये सारे के सारे इतने सेफ बनाते हैं ये कि एयर में कोई ऐसे ही वो नहीं होती कि डर लगे या कुछ, बहुत सेफ है। और जो PIA की मेंटेनेंस थी वो इतनी अच्छी थी कि उससे ज्यादा सेफ जो है जहाज था ही नहीं। मैंने सिंगापुर में भी सर्व किया, उनकी भी बहुत सेफ थी, लेकिन हमारी भी उतनी ही सेफ। और सर अभी आप फ्यूचर पायलट्स को क्या कहना चाहेंगे? कोई आपकी इंस्पिरेशन, कोई एक स्पेसिफिक एडवाइस आपकी हमारे लिए खास तौर पे? मैंने आपके लिए भी और इन गर्ल्स के लिए भी यही कहा है कि कोशिश करते रहो, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। जहाँ भी हो, इंटरव्यूज में जाओ, रिटन टेस्ट में जाओ, और अगर कोई फ्लाइंग ड्यूटीज आ जाए तो बखूबी अंजाम दो। इसी तरह मुझे एक बच्ची मिली जो कि मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स कर आयशा ने उसका नाम। मैंने कहा जरूर करो, हालांकि ये थोड़ी सी ऑड है लड़कियों के लिए, लेकिन कर रही हैं आप। जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सर की गाड़ी रुकवा के जो है ना सर के साथ एक इंटरव्यू किया था, तो जज़ाकल्लाह सर, आपने टाइम दिया अपना। मिस एमन हमारे साथ हैं जो कि RFC की एक स्टूडेंट रह चुकी है और काफ़ी सीनियर रह चुकी है, ठीक है। इनकी हस्बैंड भी पायलट है, अभी इस टाइम सर्व कर रहे हैं, और इनके फादर इन लॉ भी पायलट है इस टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड इन एविएशन। तो इनसे एक दो सवाल करते हैं, सवाल तो इन्होंने बुला दिए सारे, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। और ख़ास तौर पे शी इज़ फ्रॉम वन ऑफ द प्लेसेस जो मेरी फेवरेट रह चुकी है, कुछ दिन पहले मैं वहाँ से होके आया हूँ। तो शी इज़ फ्रॉम स्कर्दू, ठीक है, वेरी इनरिच प्लेसेस फॉर माउंटेन्स, K2 की दुनिया से आई है ये। तो जिस तरह चट्टान वहाँ की मजबूत होती है, उसी तरह इनके हौसले मजबूत हैं। जिस तरह वो एक बुलंद और बाला किस्म के, जहाँ आपको देखना भी ना आपको आंखें उठानी पड़ती हैं, उसी तरह इनकी नजरिए हैं माशाल्लाह। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे शी हैज द पर्सनालिटी ऑन दिस। बट मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहूँगा। हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? बिकॉज उस टाइम आपके हस्बैंड नहीं थे, फादर इन लॉ नहीं थे, ठीक है, कोई प्लानिंग भी नहीं थी। तो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि आपने यही करना है? बिकॉज यू वर लाइक 3 or 4 सिस्टर्स आई गेस। तो हाउ डिड यू डिसाइड दैट, एंड देन अभी आप करियर क्यों नहीं परस्यू करना चाह रही? मैं करना चाह रही हूँ तो क्यों नहीं हो पा रहा? तो स्टार्ट से आप करिए पहले जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सलमान फॉर बीइंग दिस काइंड एंड वेरी हम्बल यू आर, थैंक यू सो मच। आपने जैसे कहा कि हौसले बहुत बुलंद, तो वो दिस कम्स फ्रॉम माय पेरेंट्स। माय मदर इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, माय फादर इज अ वेरी स्ट्रांग मैन पर्सनैलिटी वाइज। तो उनको हमेशा था कि हमारी बच्चियां जो है ना वो दुनिया में जो मर्जी कर लें, लेकिन पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो जिंदगी में गोल सेट करना है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यू हैव टू चूज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आपने क्या करना है। तो माय बिग एल्डर सिस्टर शी वाज वेरी मच श्योर कि उसे डॉक्टर बनना है बचपन से। मैं थोड़ी सी अनडिसाइसिव थी क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, कि मैं क्या बनूंगी इस पे मैं डिसाइसिव नहीं थी। बट जब मैं 8-9 क्लास में आई और सोशल मीडिया वगैरह हर चीज़ TV ये वो, तो मैंने देखा कि लड़कियां पायलट बन रही हैं, बट एयर फोर्स में। कमर्शियल फ्लाइंग का पता नहीं था तभी, तो मुझे था कि मुझे एयर फोर्स की में पायलट बनना है। बट ड्यू टू सम रीजंस मेरी एयर फोर्स में इंडक्शन नहीं हुई, मेडिकल कुछ इश्यूज थे एयर फोर्स के हवाले से, और तो नहीं हुई। तो द ओनली ऑप्शन आई वाज टोल्ड बाय वन ऑफ माय इंस्ट्रक्टर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, उनका नाम वकास है, वकासुद्दीन। उन्होंने मुझे बताया कि व्हाई डोंट यू जस्ट कम टुवर्ड्स दिस सिविल एविएशन में, कमर्शियल फ्लाइंग में आ जाओ। फिर मैं आई वाज 18-19 years old। अच्छा, और मैंने at a very young age you decided to become a pilot। मैंने FSC की थी अभी फ्रेश, और अभी FSC का रिजल्ट भी नहीं आया था, मैं इस्लामाबाद आ गई। And I started my commercial And flying. as you mentioned, I just wanted to highlight this. You came all along by yourself, Yes. without your parents, No, without any family. they just said अब फोन करना है, जाओ बेटा। तो मुझे सारे पैसे भी And this is why I tell you guys कि they are very strong with their just and with their passion. कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि अकेले उड़ के आ गए हैं, बस जो करना है कर लेना है। मैं खुद आई, अपना एडमिशन कराया, यूनिफॉर्म सिलवाया अपना, और सारा कुछ किया। और लेकिन मेरे पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट थी पीछे से कि दे वर लाइक तुमने जो करना है करो, वी आर विद यू, और हिम्मत नहीं हारनी, और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हालांकि इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जाहिर है आप हिम्मत भी हार जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और कर लिया। और अभी आप जो दूसरा सवाल आपका सवाल का जो पार्ट है आपका कि मैं क्यों परस्यू नहीं करना चाह रही थी, जैसे आपने कहा मेरे हस्बैंड भी एयरलाइन पायलट है, सो ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एट होम। तो मेरे बच्चों के मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह से, तो आई हैव टू बी द प्रेजेंट पेरेंट फॉर देम। हालांकि मेरे हस्बैंड बेचारे की बहुत कोशिश होती है कि वो भी प्रेजेंट हो मोस्टली, लेकिन जॉब की नेचर ऐसी है कि ही इज नॉट। Of course, you have to be on the road. सो अगर मैं भी अभी परस्यू करती, हालांकि अभी मैं इंस्ट्रक्टर रेटिंग में इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आई हैव टू गिव माय डेज एंड नाइट्स। जाके बैठो बच्चों के साथ, फ्लाई कराओ उनको, न्यू पायलट्स को फ्लाई कराओ, अपना दिन रात दो। तो मेरा It's like finger picking, and you won't be able to take care of your kids at So, home. इस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी इज माय किड्स। But still, I can see the passion within her, the way she has been talking A about. pilot is not made, a pilot is born, and once you're a pilot, you stay a pilot till you die. That's a very right thing to say. By myself, मैं बचपन में ना आसमान बहुत ज़्यादा देखा करता था, और मेरी वालिदा कहती थी तुम क्या देख रहे हो, पर मैं कहता था I don't know, मुझे लगता है कि ऊपर कुछ है। तो वालिदा मेरी कहती थी जो इस तरह देखती है ना आसमानों को, वो पहुंचते हैं वहाँ पर, और दूसरा उनके दिमाग आम दिमाग नहीं होते। Like they always have to overthink about something that is happening in the world. तो curiosity जो है, this make you pilot. अब जब मैं हालांकि बताऊं, मैं सो जाती हूँ, मुझे यार छोड़ो, मैं क्या, मैंने फ्लाई करना है, अपने बच्चे ये वो। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे कहते हैं तुम पागल हो, तुमने मेडिकल क्यों नहीं कराया अभी तक, तुम ये क्यों नहीं करा रही, तुम ये क्यों नहीं करा रही। तो मेरे मियाँ मुझे बहुत ज्यादा So you are पुश करते keeping हैं। your medical updated all the It's time. updated. अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप My अपने serial is updated. अच्छा माशाल्लाह, कभी ऐसा हुआ कि आप अपने हस्बैंड के साथ फ्लाई कर रही हैं बहुत ज्यादा। और आप उन्हें मैसेज में बोल रही हो कि ये गलत चला रहे हो, तुम स्लो चलाओ बच्चे बैठने के साथ। नहीं होता है ना, औरतों को आदत होती है, when you are driving the car, तो औरतों को आदत होती है। मेरी वालिदा खास तौर पे कोई जंप आते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, मेरी वालिदा शोर मचाती है, कलमा पड़ने लग जाती है, और मैं ड्राइवर होने के नाते डर जाता मैं हूँ। अपने मियाँ को ऐसा कभी आपने किया हो? इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास है 250-300 घंटे, उनके पास 7000 घंटे, माशाल्लाह। तो मेरा तो बोलना बिल्कुल भी नहीं बनता उनको। और वो जेट पे है, मैं तो अच्छा। अभी सेस्ना पे हूँ, वो जेट फ्लाई कर रहे हैं, सो ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड। वो मेरे काम में नहीं बोलते कि तुम कैसी माँ हो, तुम कैसी वाइफ हो, तुम कैसे कर रही हो मैनेज, घर वर सब कुछ मेरे पास है, मतलब मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों आपके के नाम साथ, और मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ अपने बच्चों के साथ, Absolutely, और absolutely. बाहर You are का the मैनेज। person who need to care of. तो अभी since I am also becoming a pilot, I just received my SPL. तो एक आधा पेपर भी मैंने पास कर लिया। तो if you can give me an advice, how should I pursue? Even though I have a complete career in software engineering, I am successful in that. But still, I wanted to pursue as a hobby. Then I decided to go for CPL. So how should I? At the aviation industry right now, I would suggest if you have already an established career, please pursue your career. But Yeah, I'm obviously, doing that. अगर आपको शौक है फ्लाइंग का तो प्लीज करें। अच्छा ठीक है, ये बस हो गया। तो आप प्लीज अपना एज अ पार्ट टाइम इफ यू वांट टू परस्यू दिस फ्लाइंग जरूर करें, और एज अ फर्स्ट करियर आप बेशक ना करें, बट इट्स ऑलवेज गुड टू फ्लाई, इंसान अपना भी अच्छा फील करता है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर Thank you योर। very much. और एक एडवाइस जो मैं दूंगी सलमान को, ये बी पेशेंट, ये फील बहुत पेशेंस मांगती है, Of course. आपको Calmity and हाँ, patience, yes. बहुत काम रहेगा और बहुत पेशेंस रहेगा। All I right. wish you all the best. Thank you very much. Thank you very much. It was really nice to have you. Lovely meeting you, Safar. Thank you. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको वेलकम करते हैं RFC। सर आप भी प्लीज आए ना। अच्छा सर के साथ हम पहले भी एक इंटरव्यू कर चुके हैं जो कि सिर्फ इन्हीं का इंटरव्यू था, और इनके बारे में ही सारी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस डॉक्यूमेंट्री के बाद मेरे चैनल पे काफी लोगों ने मुझसे सवाल जवाब किए अपने हवाले से, और अक्सर औकात मेरे कुछ दोस्त जो कश्मीर जाया करते थे वो पूछा करते थे कि आपके एक बड़े सीनियर हैं वो कश्मीर रहते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब टूरिज्म के हवाले से हैं, बिकॉज द वे सर हैज इंस्पायर्ड अस, और जिस तरह से उस वीडियो के अंदर उन्होंने गाइड किया था ना, वी वर ऑल बिकम योर फैन अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडली व्हाई वी आर हियर अगेन, एक दोबारा इंटरव्यू करने का मकसद, बिकॉज ही इज स्टिल इन एविएशन, अ पर्सन हु इज अ लायन, ही इज नेवर गोइंग टू ग्रो ओल्ड। कहते हैं ना शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये शेर हैं ऐसे जो वाकई चट्टान जैसे मजबूत इरादे वाले, और ही इज RFC फ्लायर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप इंटरनेशनल वुमेन डेज के हवाले से क्या एक अपना एक मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेजर अगेन, और मुझे बहुत खुशी है आपने मुझे इस इवेंट पे बात करने का मौका दिया। 8 सितंबर 8 मार्च is celebrated as International Women's Day. This is in memory of a woman who started on rise in 1911. But if you go in Islam, Islam has given a complete chapter in Quran Pak on Surah Nisa, and later on Islam has the role models of us are Khadija, Hazrat Aisha, Hazrat Fatima. They are our role model and inspiration.
Secondly, I congratulate all the women on 8th of March Day. Happy Women's Day to all. And on that day, I will give a message that the women are progressing. In police, if you say, the women who have worked as IGP, they are still working as DIGs, as SSPs, and the DPOs are women. They are very powerful and strong women. Right now, I've seen very senior pilot from RFC. She came and she's a 777 pilot. She flies from Islamabad to Toronto, and I was very inspired by her. That she's a motivator. Her father, her husband, especially she thanked her father and husband, and she told us that even father and husband, somebody has to be supporting on the ground. So I'm so proud that her husband and her father stood behind her, and she has achieved that milestone of becoming a 777 pilot. माशाल्लाह। Thank you. अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, चूंकि आप टूरिज्म पुलिस में रह चुके हैं, इसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा हमारे पास एक सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है? तो सर आप टूरिज्म के अंदर हैं, जैसे कि वहाँ पर काफ़ी सारी बाइकर्स भी आती हैं लड़कियाँ, काफ़ी सारी लड़कियाँ स्पोर्ट्स के तौर पे आती हैं, वहाँ पर विजिट के तौर पे आती हैं, तो उनको गाइडेंस वगैरह समटाइम नहीं मिल पाती। तो ऑफ कोर्स जब से टूरिज्म पुलिस फॉर्म में आई है, आप उनको लीड करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पर्सनली 2-3 लड़कियों ने बाकायदा फीडबैक दिया कि जब भी हम कश्मीर जाते हैं वी फील मोर सेफ। तो उस हवाले से द वे यू हैव पुट द इनिशिएटिव, वी ऑल वांटेड टू थैंक यू। और आगे मुझे मजीद बताएं कि अब कहाँ पर हम मजीद सर्विसेज दे रहे हैं। As I myself was one of the person who started this 2019 IGP Salahuddin Masood initiative. Later on, that was taken over by the Deputy IG. Right now, our IG Rana Jabbar Saab is also very keen on giving safety and security to all the tourists. Millions of people flock into Ajmer on these days, and the tourism it's a complete industry now. And we are trying to make the environment as safe as possible for anyone. Foreigners, local tourists, we welcome them in Ajmer. Number 2 is the helpline. AJK, the tourist police, they have their Facebook page, they have Insta page. There are AJK police web pages available. You can, and there's a direct number. It's a 24/7 number. You call them. You take the guidance. If you have any problem regarding the tourists coming to Ajmer, their vehicle has a problem. They know the place. They want to know the place. So the tourist police is their eyes and ears on the ground. And sir, how do you define the extension of this project into other continents as well? Because अभी काफी continent में missing है, KPK में it's missing, आपके गिलगित बल्तिस्तान में it's hugely missing. तो वहाँ पर how do you define कि आप अगर initiative लें? Main initiative that we have taken right now is the tourist app. As you come to Ajmer, AJK tourist app is available. You download that. You get all the prominent places on the map. So firstly, secondly, all the police officers who are working in that area, their mobile number is also located. If you are in distress, you call the person, you contact them via phone. There's a panic button at various police stations. So we want to emphasize the tourists to please welcome Ajmer. It's an open place. You are more than welcome. You enjoy the scenic beauty. You enjoy the mountains. You enjoy the peace, your quietness. You enjoy quality time with your family. Absolutely. All right then, thank you very much. Sir, जा रहे थे, जाते हुए मैंने Thank you इनको very रोका, बड़ा मुश्किल टाइम लिया। जज़ाकल्लाह सर, once again, thank you. Thank you very much. My friend is here. जज़ाकल्लाह। Nice to meet you, sir. He's also in the tourism, like related field. They have their own places in Rawalakot. Whenever you go to Rawalakot, they have their own resort over there. They have I have been to Ganga Choti and Rawalakot or skiing. They have skiing areas also available. AJK police and tourism department, they are working for the paragliding. Yeah, of course, I am also a paraglider. So PHP में अभी है. Paragliding event was conducted by the present IGP. माशाल्लाह, बिल्कुल आई नहीं. Huge success, and we welcome all people to come and visit Ajmer. Inshallah, more than
थैंक यू देखिए आपकी चैनल के साथ से थोड़ा सा मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ। जी जी सर। तो सर तो घर जफराबाद को वहाँ पे ऑल ओवर की आवाज़ पूरी डील कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली टीपी और टूरिज्म पुलिस जफराबाद वहाँ पे उनकी सिटिंग वहाँ पे होती है, तो ये मॉनिटर सारा करते हैं। स्पेशली रावलाकोट की हद तक हमने वहाँ पे ये किया हुआ है कि जो हमारी अपनी वहाँ पे लैंड थी उसमें ऑलमोस्ट 200 से 250 कनाल पे हमने पार्क बनाया हुआ है रजवान रिजॉर्ट के नाम से। तो जमान मेरे ग्रैंडफादर का नाम था, तो उनके नाम पे हमने ये बनाया हुआ है। वहाँ पे रिजॉर्ट्स भी हैं और प्लस ये है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम किस्म का जो फैसिलिटीज है ना वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो इन्वायरमेंट अपने एक रेस्टोरेंट भी है, तो सबको हम दावत देते हैं। इंशाल्लाह आफ्टर ईद सीजन आ रहा है, तो स्नो फॉलिंग हुई है, बड़ी अच्छी स्नो फॉलिंग हुई है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ईद के बाद जो सीजन आ रहा है तो बिल्कुल आपके चैनल के साथ सबको दावत दे रहे हैं, आप आएँ और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह अभी आपने ये कहा ना कि वहाँ पे जो बाइक राइडर्स जो फीमेल सेक्टर में जा रही हैं तो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फील कर रही है, तो ये भी एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह चलो सारा अल्लाह करे कि हमारा पूरा मुल्क पीसफुल बन जाए, लेकिन स्पेशली जो हमारी टेरिटरी है ना आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये है कि हमारी मेहमान नवाजी बड़ी होती है, तो इस लिहाज से जो है ना हमारे बड़ी पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम इन लोग को किसी किस्म का कोई इशू ना हो, मिस ऐप किसी किस्म का ना हो, तो उसमें मुश्तबा साहब की तो बहुत बड़ी ये तो यहाँ पे बल्कि ये आप जो हमारा आखिरी कोना है ना वहाँ तक ताओबट तक, ये ताओबट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे है, ये सारा टूरिज्म इसको मॉनिटर करते हैं और ये पर्सनली भी जाते हैं। अभी वहाँ पे कुछ 2-8-10 साल से भी हुए थे, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे आप यकीन माने कि कोई भी वहाँ पे नहीं जा सकता, कोई यंगस्टर भी नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पे ये खुद पहुंचे, पर्सनली फिजिकली पहुंचे वहाँ पे जाके तो ये भी इंतजार जा रहा है, तो आप बिल्कुल ये दावत है जी आपके चैनल इंशाल्लाह आप बेहतर पाएं। थैंक यू सर। हमारी सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, मिस अनुषी, तो हम इनसे इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और किस तरह से एविएशन में आना इनको पसंद आया और इन्होंने RFC में एज ए इंस्ट्रक्टर कैसे स्टार्ट किया है और अभी ये कैसे फील कर रही है, ओवरऑल इनकी कैसे फील चल रही है माशाल्लाह। Assalamualaikum, my name is Anusha. I'm a flight instructor at RFC. So I joined back in 2018. I will not say the journey was easy, it was a bit challenging, but I've been very fortunate that I've had the support of my friends, family and my instructors, and I've learned a lot along the way. मैम आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी आप कैसा एंजॉय कर रही हैं इसको एविएशन को RFC में खासतौर पे एज एन इंस्ट्रक्टर, और आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए? My aim as an instructor is not only to teach them aviation skills. Whenever a student of mine sits in an aircraft, particularly a girl, so I see them breaking barriers and paving way for more women to join aviation. So in the future, I want more and more girls to come into this field, and I'm very hopeful that the future will be bright. Thank you very much, ma'am. Thank you. अच्छा, आज हमारे साथ RFC की एक स्टूडेंट मौजूद है, शी इज ऑफ माय बैच। आई एम ऑनर्ड कि हमारी GR थी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया हमारे उस बैच को, फिर भी वी आर थैंक यू फॉर दैट। तो ऐसा हमें बताएं कि आपने क्यों एविएशन ज्वाइन की, बिकॉज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उस हवाले से हम थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाह रहे हैं बाकी जो लड़कियाँ पायलट बनना चाहती हैं। ओके, और मैंने बैच पर एडमिशन किया था 2024 में, और मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी मैं पायलट बनूँ, और कह सकते हैं कि मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी, और मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। और बैच 1 में मैंने एडमिशन लिया, 7 साल बाद मेरे साथ उन्होंने पढ़ाया और अभी भी पढ़ रही हूँ, कंप्लीट होगी और अभी इंशाल्लाह SPL आ गया, मेरा भी हाँ वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होती है, तो इंशाल्लाह अभी अच्छा, थोड़ा सा गाइड करें कि पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपके ऊपर भी वही चीज़ें लागू होती हैं जो एक मैन के ऊपर सारी वेरिफिकेशंस और एजेंसी वेरिफिकेशन हर चीज़ों से? जी, सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरह दी जाती है जिस तरह बाकी में प्राइवेट में जाती है, और जिस तरह के सिक्योरिटी। तो अभी अपने फ्लाइट कब स्टार्ट करेंगे और आप सबसे पहले डेडिकेट किसको करेंगे अपनी फ्लाइट? डेडिकेट मैं सबसे पहले अपने फादर को करूँगी, और क्या कहते हैं कि SPL आएगा तो इंशाल्लाह हम फ्लाइट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वो फिर अलग एक्सपीरियंस है। तो आपके पास पहुँच जाएगा रडर तक? सवाल का जवाब दो। जी पहुँच जाएगा वो। चलो, थैंक यू। अच्छा मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा बताएंगे कि SPL क्या होता है?
10 पे स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, ठीक है। वो CPL से पहले मतलब जिस तरह आप PIA जितने भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिक्योरिटी में ये रिक्वायरमेंट है कि वो स्टूडेंट को सिर्फ नहीं जहाज चलाने देता जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो, तो CPL तो वो आपको नहीं दे सकते ना, तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेंगे तो आप जाहिर है। एंड क्वाइट ऑनेस्टली जो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है इट्स नॉट इजी। इवन कि हम जब पहली बार एयरपोर्ट पे गए थे हम बिल्कुल ऐसा फील कर रहे थे कि वो ऑनर्ड, हमें कोई रोक नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वी आर डायरेक्टली ऑन द रनवे और जहाज में होके जा रहे थे। और ओवरऑल चलिए थैंक यू मैम। साथ हमारे सेकंड स्टूडेंट पायलट हैं जिन्होंने RFC से ही अपनी ग्राउंड स्कूलिंग कंप्लीट की है। शी इज आल्सो एक्सपेक्टिंग हर स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। तो आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाई डिड यू वांट टू बिकम अ पायलट और आपको कोई चैलेंजेस इसमें फेस आए हो, फैमिली को मनाने की कोई इशू बने हो, अभी आपको क्या चैलेंजेस फेस आ रहे हैं टू बिकम अ पायलट, आपका SPL इशू हो चुका है या उसमें हर्डल्स हैं, अगर हर्डल्स हैं तो किस टाइप के हैं आप उनमें गाइडेंस देंगे। क्योंकि वुमेन्स डे है तो हम वुमेन्स के ही बारे में पूछना चाह रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ वुमेन्स यूजुअली होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं यूजुअली नहीं इजाजत देते फीमेल्स को कि नहीं लड़की है क्या करेगी जहाज किचन में, यूजुअली यही चीज़ होती है। लेकिन मेरी फैमिली का माइंड यूजुअली बहुत डिफरेंट है चीज़ों से। तो मेरे फादर की ड्रीम थी और उन्होंने अभी एंड स्टार्ट से लेके जब मैं छोटी थी तब से अभी तक मुझे इस चीज़ के लिए तो जाओ तुम एविएशन, मेरा ख्वाब था, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। तो वो बोलते मैं तुम्हारी बैग में खड़ा हूँ, मैं हूँ, मैथ में करवाता हूँ, जाओ करो, होना चाहिए लड़कियों को। मेरे फादर सिर्फ एविएशन नहीं और चीज़ों के लिए बोलते थे, मार्शल आर्ट्स, फ्लाइंग हो गई और शूटिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, इन सारी चीज़ों में उन्होंने आगे रखा हुआ था। तो वो स्टार्ट से एंड तक उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग की थी। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं था। बाकी माई टीचर्स माई इंस्ट्रक्टर्स तो वो आगे से हमारे जो एक्सपीरियंस है वो इश्यूज किया। तो किस तरह के इशू आ रहे हैं तो हाउ डू यू टेकल दोस इश्यूज? मेडिकल का इशू आ रहा है वो, अच्छा स्टिल द मेडिकल, उसके बाद नो इशू। ओके सो व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल इश्यूज दे नॉर्मली टेक केयर ऑफ? क्योंकि क्लास 1 मेडिकल इज वेरी डिफिकल्ट एंड थोरो, तो कौन कौन सा टेस्ट आपका उसके अंदर होता है व्हिच यू हैव टू कंप्लीट? करवाते हैं वो, उसके बाद आपका ECG होता है, चेक योर हार्ट, आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हमारी वो चेक करते हैं कि आप ठीक हो, आर यू लाइक केपेबल ऑफ फ्लाइंग या कोई इशू तो नहीं है। एस्थमा, दे चेक योर एस्थमा, फैमिली से कोई बीमारी आपको कोई आ रही हो तो जीन्स में होता है तो वो भी पूछते हैं। And finally, how do you define the difference between a woman pilot and a male pilot? जैसे कि वो बता रहे थे पायलट इज जस्ट अ पायलट, तो आपकी नज़र में या आप जिस जगह पे रहती हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, उसमें इसका क्या की डिफरेंस है? एंड और सॉरी टू से बट डू यू हैव टू फाइट फॉर इट? ओके तो आप उसका मेरी नज़रों में ये है कि फीमेल्स जो हैं दे आर मच मोर केपेबल देन मेन, वो तो है बिकॉज यूजुअली कुछ फील्ड्स में मेन सक्सीड कभी कभी होता है, मेन सक्सीड नहीं कर सकते, फीमेल्स उसमें आगे निकल जाती है, यूजुअली फीमेल्स आर लाइक डाउनग्रेडेड फॉर इट, तो वो ये चीज़ है ही नहीं है। अच्छा एक फाइनल क्वेश्चन, इट्स गोइंग टू बी द लास्ट वन। हमारी क्लास के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां बहुत आगे होती हैं स्टडीज के अंदर, लेकिन जब फील्ड के अंदर एंटर किया जाता है तो वहाँ लड़कियों को इक्का दुक्का देखते हैं, तो ये क्या रीजन है? माशरा इसमें रीजन है, हमारी सोसाइटी है, हमारी गवर्नमेंट है? यूजुअली कल्चर में हमें कहते हैं कि लड़कों को पर्दा ताकि छाप के रहना चाहिए, नाजुक सी होती है उनका ख्याल और कोई तो, हालांकि ये चीज़ तो सही नहीं है। ऑब्वियसली जब लड़कियां खुद निकलेंगी वो अपने आप को देखेंगी, दे लाइक बिकम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो वो अपने आप को दे बिकम इंडिपेंडेंट, उनको अपने आप को देखना, दे स्टार्ट टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद नहीं थी कि दोबारा से और नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जो है RFC की स्कूलिंग सिस्टम की, ग्राउंड स्कूलिंग की, जो हम यहाँ पर स्टूडेंट बन के पढ़ा करते थे, इट वाज वेरी वेल डन अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया। और ख़ास तौर पे जो हमारे PIA के पायलट्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। मिस जोया आपने हमें इंटरव्यू दिया, मिस एमन ने इंटरव्यू किया हमारे साथ और काफ़ी अच्छी हमने डिस्कशन की, ठीक है। और बाकी ये कि इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे, इसी तरह से हम एविएशन इंडस्ट्री को आपके सामने लेके आते रहेंगे। शुरू से आज तक मेरा मेन पर्पस व्लॉग बनाने का यही था कि कोई ना कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़, ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में कोई और नहीं दिखा रहा, वी शुड बी डिस्प्लेइंग दैट, ताकि एक एजुकेशन हो सके इंसान की और साथ साथ जो है हमारा एंटरटेनमेंट भी बन सके। तो खैर अपना ख्याल रखें, रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम, तो अभी घर को चल रहे हैं, 3:30-4 बज चुके हैं, इंशाल्लाह इफ्तार करते हैं और फिर दुआ में याद रखते हैं। अपना ख्याल रखें, इस तरह के नए व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें।